الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار نائب پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں جھوم جھوم کر ویلانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں دوستوں، میرے لیے سب سے مبارک بات ہے اہل خانہ علی جناب ہمارے رئیس بھائی اور حاجی نعمت صاحب، جنہوں نے اپنی کوششوں سے ہم اور آپ کو اکٹھا کر کے نیکیاں کمانے کا بھرپور موقع عنایت فرمایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس ذکر خیر کے تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ہم سب کے لیے مولا اس کو ذریعہ نجات بنا۔ حضرات، میں آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور میں ایک بہت بڑا محدث اور مصنف نہیں ہوں، صرف اسلام کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ بس مجھے تھوڑی دیر آپ سنیں اور اپنے دلوں میں فیصلہ کریں، اور الحمدللہ یہ علماء جو بیٹھے ہیں آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان کی زیارت سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چونکہ اس موضوع پہ تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ ایسے بھیڑیا ظالم صفت لوگ پیدا ہو گئے اسی لباس میں، جو آپ کو یہ حسیب چشتی دیکھ رہا ہے، اسی کرتا پیجامہ میں، اسی داڑھی اور ٹوپی میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو الجھا دیتے ہیں کہ آپ اولیاء اللہ کو اتنا مانتے ہو کہ مانتے مانتے شرک اور بدعت کر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرماؤ اس قوم سے آپ کہاں سے جیتو؟ جو قوم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبیوں کو پاور اور اختیار تسلیم نہ کرے تو اولیاء اللہ کے پاور اور تسلیم کو کہاں تسلیم کرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسین چشتی بس انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کو بتائے گا کہ الحمدللہ آپ بھی اتنے کم علم والے نہیں ہیں، آپ کو بھی علم ہے کہ بھارت کی سرزمین پر ہمیں اللہ کے نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہمیں نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ نبی کے چاہنے والے جانشان اللہ کے ولی نے کلمہ پڑھایا۔ تو انشاءاللہ میں بس آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ذہن میں فیصلہ یہ کرنا ہے جس نے ہمیں کلمہ سے نوازا ہے ان کی صباحی عمری کیا ہے، ان کی عقیدت کیا ہے۔ بس انشاءاللہ اس پہ ٹاپک میں گفتگو کرنا چاہوں گا، جو کہ میرے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بینا بیتی و منبری و روزۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرہ شریف اور میرے منبر شریف کی جو درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ اسی کو شاعر فرماتا ہے، معجزہ میرے نبی کا جو کہہ دیا تو
मोजज़ा मेरे नबी का जो कह दिया तो हो गया, और या रसूल अल्लाह आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और शायर फरमाता है मस्जिद नबवी में घर से आपके मेंबर तक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मेंबर तक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना, देखिए मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना, देखिए आपने खाना काबा को किबला कह दिया तो हो गया, आपने खाना काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और सामने जाबिर की फर्जंदों की लाशें देखकर, सामने जाबिर की फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया, हुक्म रब से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर जब हजरत अली स्टेज की तवज्जो चाहता, हाथ में तलवार लेकर जब हजरत उमर मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया, मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया। और अहले स्टेज की और खास तौर से तवज्जो चाहता हूं, बिल्लियों पर उनकी शफकत, बिल्लियों पर उनकी शफकत और उनकी मोहब्बत देखकर मुस्तफा ने अबू हुरैरा कह दिया तो हो गया, मुस्तफा ने अबू हुरैरा कह दिया तो हो गया। ऐ के खुश अकीदा मुसलमानों, चूंकि मैं थोड़ी देर इसलिए हाजिर हुआ चूंकि मैं आपको अल्लाह के नबी का पावर और अख्तियार बताना चाहता, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रईस भाई या हाजी नेमत साहब ये जो तरीका अपनाए हैं ये कोई नया तरीका नहीं है, 1400 साल पहले मेरे पैगंबर का तरीका है, मेरे पैगंबर का तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल बड़ी मुबारक और मुकद्दस महफिल है, ऐसी महफिलों को अल्लाह के फरिश्ते ढूंढा करते हैं। और जब तक यहाँ जलसा चलेगा कसम खुदा की उस वक्त तक इस जगह का कोई जवाब ना होगा। आज अगर मैं ये हसीब चिश्ती आपसे सवाल कर बैठे कि इस वक्त है के खुशअकीदा मुसलमानों आप कहां बैठे हो, तो जाहिरी एतबार से आपके पास इसका जवाब ना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले स्टेज बैठे हैं, अहले इल्म है, इनसे पूछो तो जवाब देंगे, कहिए सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त आप जन्नत के क्यारी में बैठे, कहां बैठे हैं? जन्नत के क्यारी में बैठे हैं। ये हसीब चिश्ती नहीं कह रहा है, मौलाना सलमान बरकाती साहब क़िबला नहीं कह रहे हैं, कारी शहादत साहब क़िबला नहीं कह रहे हैं, कारी शेख मोहम्मद साहब क़िबला नहीं कह रहे हैं, शायर अहले सुन्नत कारी सद्दाम फतेहपुरी साहब क़िबला नहीं कह रहे हैं, नकीब इजलास कलाम कदरवी साहब क़िबला नहीं कह रहे हैं, बल्कि मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले अपने जानिसारों से फरमाया था, ओ मेरे जानिसारों, ओ मेरे चेहरे वाले, ओ मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो तो कुछ शर्म लिया करो। आज ये हमारा तरीका नहीं है, 1400 साल पहले पैगंबर का तरीका है। सुनो, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के बराबर, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के बराबर, हम वो पढ़ा करते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है, हम वो पढ़ा करते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ऐ इश्क तेरे सदके
जलने से छोटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, 1400 साल पहले जानिसारों ने यही रसूलुल्लाह से फरमाया था, ऐ हमारे पैगंबर, जमीन पर जन्नत और जन्नत पर क्यारी, क्या मतलब? बेशक जमीन पर जन्नत और जन्नत की क्यारी, क्या मतलब? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ओ मेरे जानिसारों, ओ मेरे चाहने वालों, आए मुझसे इश्क करने वालों, सुनो सुनो, जहां मेरा जिक्र और मेरे खुदा का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह उस जगह को जन्नत की क्यारी, जन्नत का है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। भाई लोगों, आप अंदाजा फरमाओ कि जो नबी जीते थे हम और आपको जन्नत की क्यारी में बिठा सकता है, तो यह हसीब चिश्ती का अकीदा है। यकीनन मरने के बाद जन्नत के दराजात से मालामाल बना। तो ऐ लोगों, ये कोई हमारा तरीका नहीं है, 1400 साल पहले पैगंबर का तरीका है। और साथ साथ मैं बताता चलूं, आज जो लोग दलाइल मांग रहे हैं, रवायतें मांग रहे हैं कि इनका पावर और अख्तियार क्या है, तो मैं दुनिया की मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में जो आग है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस एक देहात में है जहां आग की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज गैस का सिस्टम हो गया। आज से 2, 4, 5 साल 10 साल पहले जाएंगे तो हमारा जो खाने का तरीका होता था, रोटी सब्जी जो बना करती थी आग ही में बना करती थी। अरे आग की हैसियत और आग की पावर समझना चाहते हो तो हमारी माओ से पूछो, कितनी ये तकलीफ उठाकर आग में खाना बनाया करती है, कितने मर्तबा सुबह से शाम तक इनको आग में जलना पड़ता है। आग का काम होता है जलाना। सुनो, आज जो ये दलील मांग रहे हैं अल्लाह के पैगंबरों को पावर और अख्तियार नहीं है, तो सुनो ऐन के खुश अकीदा मुसलमानों, ये हसीब चिश्ती आपको पैगाम दे रहा है। अरे अल्लाह ने अपने पैगंबर को पावर अख्तियार दिया है। जब दुनिया बनाई तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को इस कायनात में भेजा, और अल्लाह का पैगंबर इस कायनात में आकर आग में कदम रखते आग गुले गुलजार बन जाए, उसे इस्माइल इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। और दुनिया में आकर जो अपने एरिया लगाते आबे ज़मज़म निकल आए, उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। और जो अपने के आंखों में अपना हाथ फेर दे मेरा ही आ जाए, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। और वो नबी जो अपना ऐसा मुबारक जमीन पर मार दे 12 चश्मे फट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और सुना जो अपने उंगली की खाइयों से पानी निकालते, उसे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दम मदार अल्लामा हसीब चिश्ती साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आयर के खुश अकीदा मुसलमानों, पैगाम देने का मकसद ये है, आज सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हसीब चिश्ती पैगाम दे रहा है, इसके बाद दीगर उलमा आएंगे आपको पैगाम देंगे, लेकिन मामला ये है आपके इल्म में इजाफा नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है जानते हैं? चूंकि हम नबी के सबक को भूल गए, नबी के सबक को भूल गए। जो नबी ने हमें हुक्म फरमाया तुम अच्छे कैसे बनोगे, उलमा की सोबत में बनोगे। आज देखिए हमारे नौजवान को, आज वो ऐसी जगह बैठा रहता है कि शायद हल्का दिल वाला इंसान अगर गुजरे तो वो डर जाए। ऐसे पेड़ के नीचे सन्नाटे में हमारा नौजवान फेसबुक चला रहा है। तो जाओ ना, कौन सी फेसबुक, दुकान ऐसे बैठ के सुनाता है। तो बताने का मकसद ये है, अब आप ये बताओ हमारा नौजवान बच्चा आज फेसबुक में वक्त गुजार रहा है, इन्हें दीन क्या मालूम?
اور سب سے افسوس کی بڑی بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ جن کی اللہ نے جنہیں مقدس کا ستارہ چمکایا ہے وہ اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں. تو ان محفلوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے قابل مبارک حضرت اہل فاتحہ جنہوں نے سارے علماء کو اکٹھا کر کے ایک اسلام کا پیغام بھیج رہے ہیں الحمدللہ. تو ان جلسوں سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور رسول کا راستہ بتایا جاتا ہے. اس لیے ان جلسوں میں تشریف لایا کرو. سنو میرے بات بہت اچھی خطاب ہوں گے, آپ کو نہیں بھی سماعت فرمانا ہے. صرف کم وقت میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. جو آج ہمارا وقت ادھر ادھر گزر رہا ہے یہ ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھنے والی نہیں ہے. اگر نامۂ اعمال میں آپ کے اضافہ ہونے والا ہے تو 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے تمہارے لیے یہی فرمایا تھا اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھو. جانتے ہو اللہ نے ان کے مرتبوں کو اتنا بڑھایا, یہ جب سینہ اپنا منتقل کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. کہہ دیجیے سینہ منتقل کرتے ہیں. میں ان کی اہمیت بتا رہا ہوں. آج جو آپ ان کو دیکھ رہے ہو سب لوگ ان کو نہیں دیکھ پاتے, سب نہیں دیکھا کرتے ہیں. قسمت والے ہی لوگ دیکھا کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اور حقیقت یہ ہے آج آپ کے گاؤں یا قصبوں میں جو امام نظر آتے ہیں انہی علماء کا سینہ منتقل ہوتا ہے. تو کوئی حافظ قرآن, کوئی عالم دین, کوئی مفتی اعظم بنتا. اس لیے آپ ان سے جو, اور حقیقت یہی ہے, یہی وہ پہچان بتانے والے ہیں کون عاشق رسول ہے, کون غدابت رسول ہے, کون غدار ہے. یہی لوگ بتانے والے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں. لوگ آج پیغمبروں کو اختیار کو ختم کر رہے ہیں, کہتے کوئی اختیار نہیں. معاذ اللہ, پڑھیے معاذ اللہ. تو میں آپ کو پیغام یہ بتا رہا ہوں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ انبیاء کا کوئی پاور نہیں تو اولیاء اللہ کی پاور کو کیا تسلیم کریں گے. تو سنو, اب یہ حسیب چشتی خواجہ غریب نواز کا ایک ادنا سا غلام ہے, آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے. زیادہ کتابوں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے سرزمین یعنی راجستھان جو اب میرے معلّہ ہے, کہہ دیجئے سبحان اللہ. سنو, آپ کو کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے سوائے عمری پڑھ لینا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. خواجہ غریب نواز اگر اہل سنت والجماعت کے تھے, اگر میلاد منانے والے تھے, فاتح کرانے والے تھے, تو آپ فاتح کرا لینا, میلاد پاک کو منا لینا. سنو, آج لوگ اس بارے میں کہتے ہیں اولیاء اللہ کو کوئی پاور نہیں ہے. سنو, اللہ نے جو فرمایا تو مصطفیٰ نے اسی بات کے اندر خواجہ غریب نواز کو بھیجا, اور بھیج کر 10-25 کو کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ شہادت سے نوانا. تو سنو, یہ حسیب چشتی پیغام دینا چاہتا ہے جب تک اس بھارت پر خواجہ غریب نواز کا دودھیا جنت سلامت رہے گا تو اسی بھارت کے اندر اسلام اور مسلمان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, دم مدار علامہ حسیب چشتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر زندہ. آج اگر ہم ان کو اس پاور میں تسلیم نہیں کر رہے تو بات پھر وہی ہو جاتی ہے جہاں کھاتے وہ چھت کرتے. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے اچھے نہیں تھے. اس سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے سب جانتے ہیں. چونکہ وقت کم ہے, کم وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سنو, چونکہ یہ پروگرام سنت عقیقہ کے موقع پر رکھا گیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے رئیس بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں کر رہے, 1400 سال پہلے یہ کام ہوا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. بس اپنا یہ بات پہنچا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. چونکہ فہرست بڑی طویل ہے, آپ کو سب کو سماعت فرمانا ہے. بس یہ پیغام دے کر میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. چونکہ اب کبھی انشاءاللہ آپ وقت دیں گے یہ حسیب چشتی حاضر ہوگا اور نبی کی پیاری پیاری بات کو انشاءاللہ بتاتا ہوا نظر آئے گا. سنو, تاریخ مصطفیٰ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج اگر ہم اور آپ یہ جو کام کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں, بہت پرانا کام نظر آ رہا ہے. سنو, 1400 سال پہلے یہی بات
कुफार कुरैश ने उर्वा इब्न मसूद को भेजकर पता लगवाई कि मुस्तफा क्या कर रही है। मुस्तफा, क्योंकि मुस्तफा पर हमला कोई आज नया नहीं हो रहा है, 1400 साल से हो रहा है। और ये पैगाम उनसे भेजकर कहा जा देख क्या उनके क्या हालात है और क्या कर रहे हैं। सुनो कौम मुस्लिम, जब उर्वा इब्न मसूद आया वो देखने लगा, देख 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 टुक की आंखों से देख रहा है कि मुस्तफा के चाहने वाले, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमसे पहले लोग सुन्नत में अमल करके इस दुनिया से रुखसत, समझ रहे हैं? आज कोई हमारा ये नया तरीका नहीं है। उर्वा इब्न मसूद की नजर पड़ती है और क्या देख रहा है? मुस्तफा वजू फरमा रहे हैं। मुस्तफा के चाहने वाले, मुस्तफा के मानने वाले, मुस्तफा के जानसार अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाकर जो मुस्तफा के वजू का पानी गिर रहा है जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, बल्कि अपने हाथों को बढ़ा बढ़ाकर अपने हाथों में लेकर कोई पेशानी पे मल रहा है, कोई अपने सीने मुबारक पे मल रहा है। जब उर्वा इब्न मसूद की नजर इस बात पर पड़ी है तो पलट कर इस बारे में जब वो जवाब देता है कि दीजिए सुभान अल्लाह, यही कहता है मोहम्मद बहती गंगा है जिसको जी चाहे वो नहा ले। ये जवाब देता है। अब कुफार कुरैश पूछते हैं, उर्वा इब्न मसूद बताओ मोहम्मद के पास क्या साजो सामान ज्यादा है, क्या हथियार ज्यादा है? तो सुनो, उर्वा इब्न मसूद फरमाता है, अरे कुफार कुरैश सुनो, जो कौम अपने पेशवा का, अपने शहंशाह का कतराए वजू जमीन पर नहीं गिरने देती है, वो कौम अपने पेशवा का कतराए खून कैसे जमीन पर गिरने देती है? आज हमारे रईस भाई और हाजी नेमत साहब यही पैगाम दे रहे हैं। आज हमारे बच्चा का अगर खतने के टाइम पर एक कतरा गिर जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने पेशवा का, अपने शहंशाह का, और ऐसे शहंशाह है जिन्होंने मोहम्मद बनकर जमीन पे हुक्मरानी की है और इमाम बनकर अर्श आज़म पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्होंने मोहम्मद बनकर जमीन पर हुक्मरानी की और अहमद बनकर अर्शे आज़म पर हुक्मरानी की। ऐसा शहंशाह आपकी नजर में हो तो दिखा दो, ऐसा बादशाह आपकी नजर में हो दिखा दो, और ऐसी रियाया अगर हो, ऐसा बादशाह, ऐसी रियाया आपको देखने में नजर न आएगी। क्या देख तो रहे आप हिंदुस्तान में बादशाह कुछ कह रहा है, रियाया कुछ कह रही है, समझ रहे हैं? इस पर रोशनी नहीं डाले, एक इशारा करना चाहता हूं। बताने का मकसद यह है, हकीकत में हमने उस जात का कलमा पढ़ा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज लोग ईमान, नमाज, रोजा, लोग कहते हैं ये ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हसीब चिश्ती आपको आपके इल्म में इजाफा करना चाहता है। ये ईमान नहीं है, ईमान वो है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को दिल में बसा ले। अपने अंदर नबी की मोहब्बत पैदा कर लो, यही समझ रहे? तो ये हमारे अंदर ये इश्क पैदा हो। यकीन जानो, अगर कल आखिरत में कोई चीज काम आने वाली है तो नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत काम आने वाली है। इसलिए नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। मैं पैगाम ये दे रहा हूँ और हमारे रईस भाई भी यही खतना करके आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं। ये एक कतरी की, दो कतरी की बात कहां से आ रही है? जब हम अपने पेशवा का कतराए वजू जमीन पर नहीं गिरने देते हैं तो कतराए खून जमीन पर कैसे करने देंगे? इसी को अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर हादी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आला हजरत फाज़िल पैल भी फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ना हो कलम, ये जहां चीज है क्या न हो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा करना भी सुन्नत मुस्तफा है और
खतना करना भी सुन्नत मुस्तफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम लोग जो आज अपना ये काम कर रहे हैं, हकीकत में हम ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आज लोग अकीदा बनाए हैं सब कुछ नमाज है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हसीब चिश्ती आपको पैगाम दे रहा है, नमाज सब कुछ नहीं है, सब कुछ है तो नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है। सुनो, ये हसीब चिश्ती का अकीदा नहीं है, ना ही उलमा का अकीदा है। बहुत पहले साहबी रसूलुल्लाह की पारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया या हबीबी या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? कह दीजिए सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने फरमाया, ए सहाबी, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? आज यही बात, यही उलमा भी आपसे पूछेंगे, ए रईस भाई, ए हाजी नेमत साहब, आपने क्या क़यामत की तैयारी की है? तो सुनो, जवाब होगा, हमारा सलमान साहब को रईस से बुलाया है, आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया है, इन तमाम उलमा को इधर उधर से बुलाया है। ये हमारे आखिरत की तैयारी तो है। सुनो, हसीब चिश्ती पैगाम देना चाहता है, और सहाबी का अकीदा देखो, उनका जज्बा देखो, उनका ईमान देखो, नमाज भी मौजूद है, रोजा भी मौजूद है, हज भी मौजूद है, तमाम नेकियां मौजूद है, उसके बावजूद भी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए, अश्क पार है। प्यारे आका ने फरमाया, क्या बात है? सहाबी फरमाते हैं, ना ताक पर, ना तकवा पर, ना ज़ोत व इत्तक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। एक खुश अकीदा मुसलमानों, गोया कि वो साहबी इस बात को कहना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब बरोज़े क़यामत रब मुझसे पूछेगा, अरे मेरे प्यारे बंदे, तू कौन सी नेकी लेकर आया है, तू कौन सा तोहफा लेकर आया है, तू कौन से हिसाब किताब लेकर आया है? तो या हबीबी या रसूल अल्लाह, ना ही मैं अपने नमाज को पेश करूंगा, ना ही मैं हज को पेश करूंगा, ना ही मैं अपनी ज़कात को पेश करूंगा, ना ही और नेकियों को पेश करूंगा। या हबीबी या रसूल अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत का तोहफा पेश कर दूंगा। इतना फरमाना होता है। प्यारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सहाबी, जब ऐसी बात है, तुम्हें किसी और चीज पर नाज नहीं है, सिर्फ मेरी मोहब्बत पर नाज है, तो जाओ सारे गुलामों को ये खुशखबरी कर दो कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा वो आखिरत में भी इसी के साथ होगा। तो सुनो, अब हसीब चिश्ती को कहने दिया जाए कि आज जो दुनियादार होगा वो दुनियादार के साथ में होगा, और आज जो मुस्तफा के साथ होगा आखिरत में मुस्तफा। इसलिए चूंकि उलमा की जो फहरिस्त है बड़ी तवील है, इंशाल्लाह कभी बुलाएंगे मैं बोलूंगा। और इस शेर के साथ मैं आपको बताया जो मेरा मौजूद सखन है उसके ताल्लुक से आज लोग इतराज अंबिया पर करते हैं, औलिया पर करते हैं। बड़े सूफी हैं, फरमाते हैं, जरा संभल के फकीरों पर तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पर तबसरा करना, क्योंकि ये लोग सूखी नदी से पानी निकाल लेते हैं। क्योंकि वक्त है नहीं, इंशाअल्लाह मैं रुक नहीं डालता। हमारे बाद बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छे खिताब को समाप्त फरमाना है। रब से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सारे मुसलमानों को दुनिया में नबी से सच्चे और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक व रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता रहूं, ये गुलशन तेरा आबाद रही। अस्सलाम।